بنگلہ دیش کے بارے میں سعید کہا جا سکتا ہے کہ یہ بظاہر دو جسم ہیں لیکن ان کی روح ایک ہے۔ راحت فتح علی خان صاحب تشریف لے گئے ڈھاکہ میں۔ شیخ حسینہ جو ہیں جن کی گورنمنٹ 15 سال رہی جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور اب ان کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو وہ ایگزائل میں ہیں، اس وقت وہ انڈیا میں ہیں۔ پولیٹیکل لینڈسکیپ بدل رہی ہے۔ چیف ایڈوائزر آف بنگلہ دیش پاکستان کے پرائم منسٹر سے شہباز شریف صاحب سے 2 مرتبہ ملے۔ ایک ملاقات بھی انڈیا کے پی ایم کے ساتھ یا کسی ہائی آفیشل کے ساتھ نہیں ہوئی۔ پاکستانی گورنمنٹ نے اور بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے ویزا فلیکسیبلٹی کے لیے کچھ سٹیپس لیے ہیں، چاہے جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں JF-17 تھنڈر کے لیے بنگلہ دیش کے ملٹری آفیشلز نے ایک انٹرسٹ شو کیا ہے۔ چائنا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش یہ ایک ٹرائل لیٹرل ایکسس بن جاتا ہے۔ میں حیران رہ گیا تھا اس وقت کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے۔ چونکہ مودی صاحب سے انہوں نے فیوربل ڈیل لے لی ہے اور انڈیا کی وہ ڈیل فیور میں نہیں گئی ہے۔ اس سے بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے۔ انڈیا ہیجیمون بننا چاہتا ہے، ریجنل ہیجیمون بننا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منور حسین اور آج ہمارے ساتھ ہیں محمد سعید الزمان۔ آپ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں نمل میں IR انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈپارٹمنٹ کو، جو کہ راول پنڈی کے اندر ہے۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ابھی ریسنٹلی آپ نے PhD کی ہے۔ مختلف انٹرنیشنل ایشوز پہ آپ اچھا بولتے ہیں اور میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر ہم دونوں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے اوپر۔ سعید الزمان صاحب، بنگلہ دیش کے بارے میں سعید کہا جا سکتا ہے کہ یہ بظاہر دو جسم ہیں لیکن ان کی روح ایک ہے، اور جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو وہ نظریاتی روح ہے۔ دونوں ٹو نیشن تھیوری کے اوپر بنے اور دونوں ایک ہی سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی دونوں کی جہاں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں کی تو وہ گلے ملتے ہیں، روتے ہیں۔ پاکستان کے اندر رونا لیلا ہو، عالمگیر ہو، MM عالم جو ہمارے جیٹ فائٹر پائلٹ تھے اور جنہوں نے ریکارڈ بھی قائم کیا، یہ سارے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے۔ ریسنٹلی راحت فتح علی خان صاحب تشریف لے گئے ڈھاکہ میں 2 دفعہ، اور دونوں دفعہ فلی ہال پیکڈ تھا۔ انہوں نے جو وہاں پہ پرفارمنسز دی ہیں، پھر ہمارے بزنس کمیونٹی بھی وہاں پہ گئی ہے، ان کو بھی بڑا انہوں نے دل سے ویلکم کیا ہے۔ لیکن اس وقت حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو مودی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس ملاقات میں بنگلہ دیش کو ڈسکس بھی کیا ہے، بلکہ ایک جرنلسٹ نے سوال بھی پوچھا جس پہ ٹرمپ صاحب کا یہ رسپانس تھا کہ یہ میں مودی صاحب کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ تو مودی صاحب کوشش کریں گے کہ حسینہ واجد کو ری انسٹال کیا جائے، بیکاز بھارتی حکومت اس وقت بڑی پریشان ہے۔ جو قربتیں بڑھی ہیں حسینہ واجد کے جانے کے بعد، تقریباً 15 سالوں کا عرصہ تھا جس میں ایک فاصلہ دونوں ممالک کے درمیان میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس میں پاکستان بھی چاہتا ہے سارک جو ریجنل آرگنائزیشن ایکٹیو ہو، اور آپ کو پتہ ہے اس کا بانی جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے۔ سارک کے قیام کا جنرل پریزیڈنٹ ارشاد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ہم دونوں یہ چاہتے ہیں، بلکہ سارے ممالک چاہتے ہیں کہ سارک ایکٹیو ہو، جبکہ بھارت نے ایک الٹرنیٹیو ریجنل آرگنائزیشن کا کانسیپٹ دیا ہے اور سارک کو وہ ڈمپ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چند مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک بیک گراؤنڈ رکھا۔ تو پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی نئی ابھرتی ہوئی قربتیں ہیں، جس میں محمد یونس، ڈاکٹر محمد یونس جو کہ چیف ایڈوائزر ہے بنگلہ دیش کی حکومت کے، انہوں نے میرا خیال ہے دسمبر 2024 تک 2 دفعہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقاتیں کی۔ تو یہ جو آنا جانا ہے، پھر ان کے ہائی ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا، ملٹری ہائی ڈیلیگیشن کا، پھر ہمارے ملٹری ہائی ڈیلیگیشن کا وہاں پہ جانا، جس میں انڈیا کے میڈیا میں بڑا شور مچا، اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے اور اتنا بہترین ابتدائیہ دینے کے لیے پروگرام کا۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ جو کچھ بھی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کا بنگلہ دیش کی یقیناً داخلی ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ تو اس کا ایک تعلق ہے، لیکن ہم اس کو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول آف انالیسس سے بھی اگر اس کو کنیکٹ کریں، جو کہ ہم بعد میں کر رہے ہوں گے، تو بہت مناسب ہوگا۔ اچھا، شیخ حسینہ جو ہیں جن کی گورنمنٹ 15 سال رہی جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور اب ان کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو وہ ایگزائل میں ہیں، اس وقت وہ انڈیا میں ہیں۔
हमें मालूम है कि इंडिया और इंडिया में जो भी हुकूमत हो उसमें उनके साथ शेख हसीना की जो गवर्नमेंट 15 साल दौर इक़्तिदार में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो। और यही वजह है कि एग्ज़ाइल में शेख हसीना ने इंडिया का इंतखाब किया और वो इंडिया गईं। अब जो ये डेवलपमेंट है इंडिया बांग्लादेश में और जिसके बाद अब मोहम्मद यूनुस साहब आए जो कि एक नोबेल लॉरेट हैं, इंटरिम गवर्नमेंट को वो लीड कर रहे हैं एज ए चीफ एडवाइजर। यकीनन रुख बदल रहा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रही है और उसमें एक वाज़ेह इंडिकेशन जिसका आपने ज़िक्र किया कि चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से शहबाज शरीफ साहब से 2 मर्तबा मिले और इसी असना में कोई एक मुलाकात भी इंडिया के पीएम के साथ या किसी हाई ऑफिशियल के साथ नहीं हुई। अब दिस इज़ द एविडेंस के जनाब डाइवर्जेंस आ रही है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया आफ्टर सो लॉन्ग और यकीनन ये जो डाइवर्जेंस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया है, दूसरी तरफ ये कन्वर्जेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब कैसे? देखिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मिल रही है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप मिल रही है, टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है पाकिस्तान में जनवरी में और साथ में पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिसका आपने जिक्र किया, राहत फतेह अली खान साहब के 2 कॉन्सर्ट हुए हैं और भरपूर परफॉर्मेंस उन्होंने दी और उनको बहुत ज्यादा दाद भी मिली बांग्लादेशी आवाम की तरफ से। साथ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने वीजा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो फी के हवाले से हो, चाहे वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से हो। यकीनन 1971 के बाद ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि उसके बाद से लेके अब तक वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस थी और काफी टाइट सिक्योरिटी मेयर्स के बाद वीजा दिया जाता था। अब पिछले कुछ महीनों में अगस्त 2024 के बाद अब तक अगर हम देखें जो ये 6-7 महीने बीते इसके अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ वीजा रिलैक्सेशन है, दूसरी तरफ तकरीबन 30% ट्रेड में इजाफा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के और ट्रेड को अगर हम देखें तो इसमें आईटी भी शामिल है, इसमें फार्मास्यूटिकल भी शामिल है। यहाँ तक कि जो मिलिट्री लीडरशिप की डॉक्टर साहब जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें JF-17 थंडर के लिए बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने एक इंटरेस्ट शो किया है। सो व्हाट आई वांट टू एस्टैब्लिश इज कि ये जो चेंज आया है बांग्लादेश में इसके इम्प्लीकेशंस हैं not only for the domestic politics of Bangladesh बल्कि also it will impact upon the regional politics particularly with respect to Pakistan and India जी इस मजहर को जो नया मजहर बन रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में, इसकी वजाहत कैसे करेंगे, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन सी, दूसरे लफ्जों में कौन सी आईआर की थ्योरी इसमें फिट इन होती है जो दोनों ममालिक को करीब ला रही है? क्या इसमें इंडियन फैक्टर भी इन्वॉल्व है, सिविलाइजेशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इन्वॉल्व है जो तहरीक पाकिस्तान में चले और दोनों ममालिक जो है इनके लोग एक ही तहरीक का हिस्सा थे? या इसके साथ साथ आप इसे वक्त की जरूरत भी समझते हैं, प्रैग्मेटिज्म समझते हैं बांग्लादेश की तरफ से? बिकॉज इंडिया के हवाले से जो लोगों की वहां पे जिसे आप कहते हैं कि फीलिंग्स थी वो कोई खास अच्छी नहीं थी। उनको लगता था कि इंडिया उनके इंटरनल मामलात में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी बेचैनी मौजूद थी। तो ये सारे थोड़े थोड़े मेरे फैक्टर्स बताएं। तो अगर आप इसे इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी भी थ्योरी में फिट इन करें तो आप किस थ्योरी में से फिट इन करेंगे? अच्छा देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये और थ्योरी मेरा पैशन है और और इसको हम थ्योरेटिकली जब एनालाइज करेंगे तो यकीनन हमें इंतहाई अ, जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हमें जाना पड़ेगा। रीजन ये है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, रीजनल भी हैं और फिर सिस्टेमिक भी हैं। मुझे जो लगता है मैं इसको लिंक करूंगा सिस्टेमिक के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि सिस्टेमिक फोर्सेस ने गवर्नमेंट बदलने में कोई किरदार अदा किया, बट अगर आप देखें BRI को, राइज चाइना को,
तो ये जो राइजिंग चाइना फिनोमिनन है और वो जो बांग्लादेश और चाइना की जो कुर्बतें हैं जो कि 2016 ऑनवर्ड शुरू हुई और जो हमने देखा कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है बांग्लादेश में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेल की सूरत में हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप उसमें बांग्लादेश को हम जानते हैं कि यकीनन उनको क्लाइमेट चेंज के हवाले से खतरात हैं, तो चाइना ने इकोलॉजिकल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है बांग्लादेश में। ये जो चाइना फैक्टर है, मेरे ख्याल से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखें चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये एक ट्राइलेटरल एक्सेस बन जाता है। वो जो यूएस चाइना का सिस्टेमिक कंपटीशन है, फिर यूएस और इंडिया की आपस में इंटीग्रेशन है टू कंटेन चाइना, और फिर चाइना का जो राइज है, फिर पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू दिस बीआरआई, जिसके पाकिस्तान और बांग्लादेश को चाइना इंपॉर्टेंट पिलर्स कंसिडर करता है। आई थिंक कि वो जो इंडिया और यूएस के बीच में जो संगत बड़ी है, इसके बाद चाइना ने पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अपने ज्यादा करीब किया है। और बीआरआई की कामयाबी के लिए चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, सीपैक की बात करें, या फिर वो जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट की है बांग्लादेश में चाइना की तरफ से, आई थिंक दोज आर वेरी मच important and vital strategic interest for the China. मुझे लगता है कि इसको हमें लिंक करने की जरूरत है विद सिस्टेमिक रिगार्ड्स। जैसे आपने कहा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया सहाफी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आप बांग्लादेश पे क्या कहेंगे, तो मैं हैरान रह गया था उस वक्त कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस पोजीशन में ही नहीं थे कि वो कोई स्टेटमेंट देते, और उन्होंने वो क्वेश्चन पास ऑन कर दिया मोदी की तरफ। ये जो डेवलपमेंट है बांग्लादेश में, इसको तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बहुत एहतियात से देख रहा है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश में चेंज आया है गवर्नमेंट का, और ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये चेंज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। मैं इसको सिस्टेमिक फोर्सेस के साथ ज्यादा लिंक करता हूं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम न्यो क्लासिकल रियलिज्म की बात करें, तो वो लीडरशिप एंड परसेप्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो जब हम कहते हैं कि परसेप्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आइडियाज, आइडेंटिटी कार फार्मा है। और ये जो न्यो क्लासिकल रियलिज्म है, उसका जो ये कंपोनेंट है, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म के किसी हद तक करीब ले जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रियल स्कूल ऑफ थॉट के हवाला से। आई थिंक कि अगर हम हिस्ट्री को देखें, अगर हम आइडियोलॉजी को देखें, तो यकीनन पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हिस्ट्री शेयर करते हैं, एक आइडियोलॉजी शेयर करते हैं। टू नेशन थ्योरी की इब्तिदा अगर देखें, तो बांग्लादेश में उस वक्त जब बंगाल था, तो वहीं से तो इब्तिदा हुई, मुस्लिम लीग की इब्तिदा वहां से हुई। वो जो हिस्ट्री है, वो जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, और वो जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ावा जरूर दे रहा है टू बिल्ड कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अच्छा सईदुज़्ज़मान, मैं आपको रोक के इस पे एक सवाल फ्रेम करना चाहता हूँ। पहले 3 पॉइंट्स पे मैं अपने कमेंट्स चाहता हूँ। पहले ये कि आपने कहा कि यूएस बड़ा केयरफुल है बांग्लादेश के मामले पर। मेरा ख्याल है खुद अमेरिका के अंदर जेफरी सैश जैसे लोग भी ये तस्लीम करते हैं कि कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर में अमेरिका ने कई रिजीम्स को चेंज किया है। इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप केयरफुल होने के बजाय, चूँकि मोदी साहब से उन्होंने फेवरेबल डील ले ली है और इंडिया इंडिया की वो डील फेवर में नहीं गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि गालिबन उन्होंने ये कहा है कि चलें मोदी साहब को भी फेस सेविंग दे देते हैं, ये खुद बात करें। चूँकि वो ट्रंप साहब बड़े अच्छे डीलर हैं, तो कल को हो सकता है बांग्लादेश के साथ वो अपनी डील करें, अभी से क्यों वो ऐसी बात करें। दूसरा आपने नुक्ता उठाया कि यूएस जो है वो कंपटीशन चाइना और फिर इंडिया के हवाले से एक इंटीग्रेशन की आपने बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि यार हम तो कंपटीशन में अब इंटरेस्टेड नहीं है, और इसी वजह से वो जो लड़ाई-वड़ाई है, झगड़ा, उसको हम नहीं करना चाहते, हमारे ट्रेड हमारी एडजस्ट करें। तीसरी आपने बात की हिस्ट्री के न्यू क्लासिकल रियलिज्म के साथ मिलाने की, तो मैं ये कहता हूँ कि इस पे आपको लगता नहीं है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है जो न्यू मार्क्सिस्ट ने दिया है,
جس میں وہ کہتے ہیں کہ کلچر ہے، ہسٹری ہے، بلیف سسٹم ہے، ٹریڈیشنز ہیں، ویلیوز ہیں، وہ بڑا اہم رول پیدا کرتے ہیں اقوام کے ایکسٹرنل بیہیویئر میں۔ تو یہ 3 پوائنٹس تھے۔ البتہ اب مجھے صرف یہ بتائیے گا سعید الزمان صاحب کہ 1971 کے اندر جو اریٹیشن پیدا ہوئی تھی، اسے انڈینز بار بار ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی جو حسینہ واجد کے جو سپورٹر ہیں، غالباً لیس دین 30% ہیں، وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ویسٹرن میڈیا میں بھی کہیں کہیں اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پہ غالباً انڈیا سے انفلوئنس ہو کے یا انڈین جو ایک نیوز چینلز ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ایک ایفرٹ ڈالی جاتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 1971 میں جو کچھ ہوا بہت کمپلیکس ہے، اس پہ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، فیوچر میں بھی لکھا جا رہا ہوگا۔ میں ایک مختصر اور سمپل طریقے سے آپ کے سامنے ایک تصویر کشی کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، یقیناً ایسٹ پاکستان میں حالات، چاہے وہ پولیٹیکل تھے یا اکنامک، دیر ور کانفلکٹس، دیر ور ڈسپیوٹس، جس کو مینج کرنا چاہیے تھا۔ گڈ گورننس سے مینج ہو سکتے تھے، وہ نیگوسیشن سے مینج ہو سکتے تھے، وہ ریکنسیلیشن سے مینج ہو سکتے تھے وہ۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک طرف تھوڑے سے گورننس کی ایشو، دوسری طرف 1970 میں طوفان آیا، اور جس نے جو رہی صحیح گورننس کا جو سٹرکچر تھا اس کو بڑی کاری زر پہنچائی۔ ساتھ میں کچھ سالوں سے انڈیا مکتی بانی کے فائٹرز کو ٹرین کر رہا تھا، اور اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ سرمائلہ بوس کی آپ کتاب پڑھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی انٹرنیشنل سکولرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ مکتی بانی کو ٹرین کیا گیا، ان کے فائٹرز کو، انڈین ملٹری بیسز میں۔ اب ہوا کیا کہ جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، جو کرائسس آیا، اور پھر وہ وائلنس میں کنورٹ ہوا، اور یقیناً پھر فوجی آپریشن لانچ کیا گیا۔ اور فوجی آپریشن جب ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ نقصان تو ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نقصان صرف پاکستانی ملٹری کی طرف سے نہیں ہوا، یہ مکتی بانی کی طرف سے بھی ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرمائلہ بوس کہہ رہی ہیں، ڈیڈ ریکننگ بک ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ بہرحال ہم تاریخ کے اس اسپیسیفک آسپیکٹ پہ فار ناؤ ڈسکشن نہیں کرتے، کسی اور پروگرام میں کر لیں گے۔ لیکن what I want to establish is، ایک طرف بیڈ گورننس، دوسری طرف مکتی بانی کے فائٹرز انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا، اور انڈیا نے اس طریقہ سے ایکسپلائٹ کیا کہ اس نے پاکستان، ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بڑھاوا دیا۔ ساتھ میں انڈیا نے اسٹریٹجک فرینڈشپ، پارٹنرشپ سائن سوویت یونین کے ساتھ اگست 1971 میں، جو ایک قسم کا بڑھاوا دینا تھا سوویت یونین کی طرف سے انڈیا کو کہ گو اہیڈ۔ اب وہ حالات انڈیا کی طرف سے پیدا کیے جا رہے تھے کہ پاکستان یا تو آپریشن کا سکیل بڑھا دے ود ان ایسٹ پاکستان، مطلب پاکستانی ملٹری یا تو سکیل آف آپریشن بڑھا دے، یا پھر پاکستانی فورسز انڈیا پہ اٹیک کر دیں۔ کیونکہ انڈیا نے ایک ایسا جال، شطرنج کی بساط پہ ایک ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ پاکستان کو کارنر کرنا چاہ رہے تھے۔ اور ان دی اینڈ ہوا کیا؟ دسمبر 1971، اور وہ جو ایک پاکستان کے مشہور شاعر نے جو کہا، جو نظم لکھی تھی ایسٹ پاکستان کی اوپر، کہ وہ کچھ اس طرح، اس کی جو پہلا شعر ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جدائی تھی اس کے پیچھے یہ سارے فیکٹرز کار فرما ہیں۔ انٹرنل ایشوز بھی تھے، ریجنل بھی تھے، ایکسٹرا ریجنل فورسز بھی تھیں، اور پھر مشترکہ ہسٹری ہونے کے باوجود، مشترکہ مذہب ہونے کے باوجود، مشترکہ کلچر ہونے کے باوجود، مشترکہ سویلائزیشن ہونے کے باوجود، وہ سانحہ ہوا جس کو آج تک اس کے امپیکٹ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وہ پہلا ٹائم ہے اتنے سالوں بعد جب پاکستان اور بنگلہ دیش دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ اب یقیناً اس سے بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے، وہ اپنا کنسرن شو کرے گا، کیونکہ یہ وہی بنگلہ دیش ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی انڈیا کے ساتھ، پرٹیکولرلی ان شیخ حسینہ واجد کا جو ٹینیور تھا۔ ہم
बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि बांग्लादेश को अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू नहीं करना चाहिए। हर रियासत करती है, जैसे पाकिस्तान भी कर रही है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये खित्ता साउथ एशिया, अरबों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, ये डिजर्व करता है पीस। सार्क की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखिए कि इसकी वो आइडिया किसका था? प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश का था। इतना भरपूर आइडिया, अगर इस रीजन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो, तो वो आपने मार्क्सिस्ट थ्योरी का जिक्र किया, तो उनका तो यही एक आर्गुमेंट है ना कि देयर आर टू क्लासेस, जो बेसिक आर्गुमेंट है मार्क्सिज्म का, कि एक तरफ प्रोलेटेरियत है, दूसरी तरफ बोर्जोइजी है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और पावर मजीद पावर हासिल कर रहे हैं, मजीद इकोनॉमिक ग्रेटिफिकेशन उनकी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो प्रोलेटेरियत हैं, जो हैव्स नॉट हैं, उनकी जिंदगी अबतर होती जा रही है। तो जनाब, ये जो साउथ एशिया है, इतने अच्छे लोग, इतने टैलेंटेड लोग अक्रॉस दी कंट्रीज, मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, तो ये डिजर्व करते हैं पीस को, ये डिजर्व करते हैं प्रोग्रेस को। और ये जो सार्क की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो एक ख्वाब था कि इस रीजन में कनेक्टिविटी डेवलप की जाए, तो वो ख्वाब मेरे ख्याल से शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए। और साथ में आप देखिए कि उसमें हर्डल क्या है। मुझे लगता है कि इंडिया यहाँ पे हरदर्म है। मैं पीस लवर हूं, आई गो विद पीस, बट मैं फैक्ट सामने रखना चाहूंगा। इंडिया हेजेमॉन बनना चाहता है, रीजनल हेजेमॉन बनना चाहता है, वो अपनी यहाँ पे डोमिनेंस कायम करना चाहता है, और डोमिनेंस भी अपनी मर्जी की, कि वो तमाम पैटर्न्स को डिक्टेट करे। अगर इंडिया अपनी हटदर्मी खत्म कर दे, ये मैं उनके पॉलिसी मेकर्स को वैसे मशवरा भी दे रहा हूं, अगर वो अपनी हटदर्मी खत्म कर दे, अगर वो रीजनल हेजेमॉन का दिवे परसुइंग द ड्रीम, अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दे और रीजनल कोऑपरेशन की तरफ जाए, इक्वालिटी की बुनियाद पे, पीस की बुनियाद पे, ट्रस्ट में, ये रीजन अपने पोटेंशियल को अचीव करेगा, ये ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइज होगा, ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइज होगा, फिर यूटिलाइज होगा। आप देखिए कि हम न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। पाकिस्तान वो रियासत है जिसने कहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन होना चाहिए साउथ एशिया को। पाकिस्तान ने डिसआर्मामेंट के लिए बड़ी काविशें की हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की हर काविश को इंडिया ने साबोताज का निशाना बनाया, और यही वजह है कि हम एक ऐसी रिवेलरी में हैं कि एनिमोसिटी और मिलिट्रीइज्म ने यहाँ पे नए मुल्क बना दिए, और जंगें हुई, और अब न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, और यहाँ पे क्राइसिस जन्म ले रहे होते हैं। सो हमारे लीडर्स को, साउथ एशिया के लीडर्स को प्रेगमेटिज्म के साथ जाना होगा, अच्छा, रैशनलिज्म के साथ जाना सईदुज्जमान होगा। साहब, आपने वजह जी फरमाया जी प्रैग्मेटिज्म को लेके हमें आगे जाना है। अब मैं बात कर रहा था न्यू मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म ने, आपने सही फरमाया कि दो क्लासेस का जिक्र है। न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये मटेरियल और इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोटेक्शन के साथ साथ जो आपका कल्चर है, हिस्ट्री है, बिलीफ सिस्टम है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, यानी वो जो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। एनीवे, अब मुझे सही, आपको क्या लगता है ये जो ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है जो रिलेशनशिप की पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वेरी इन अ वेरी लिटिल स्पेन ऑफ टाइम दोनों की कुर्बतें बड़ी तेजी से आगे बढ़ी हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन की बात हो रही है, कल्चरल कोऑपरेशन की बात हो रही है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात हो रही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट एंड एक्सचेंजेस की बात हो रही है। इतनी तेजी से काम हो रहा है, तो आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या प्रिडिक्ट करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो आपने न्यू मार्क्सिज्म की बात की, यकीनन अगर हम न्यू मार्क्सिज्म की बात करें तो हम ग्रैमशी को नहीं भूल सकते। कमाल का काम किया उन्होंने, और वो कल्चरल हेजेमनी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और किस तरीके से डोमिनेंस हासिल की जाती है, फॉर श्योर दैट कैन बी वन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग इनटू द होल सिनेरियो जो कि इमर्ज कर रहा है। कमिंग टू द क्वेश्चन कि फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं, मुझे इस तरह लगता है कि आइंदा कुछ सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बतें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलेंगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान डिपेंड करता है चाइना पे, बांग्लादेश डिपेंड कर रहा है चाइना पे। अब दोनों कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट है, बी दैट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बी दैट इन फूड, बी दैट इन एनर्जी सेक्टर, बी दैट इन इकोलॉजिकल सेक्टर, बी दैट इन हेल्थ सेक्टर, बी दैट इन आईटी सेक्टर, तमाम शोबाजात में चाइना ने दोनों कंट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहां पे ये कहना भी बहुत जरूरी है कि कीपिंग इन व्यू द अनप्रिडिक्टेड पैटर्न्स जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में प्रिवेल कर रहे हैं इन पोस्ट ट्रम्प एरा, अब बहुत सी कंट्रीज
इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या जो रूल्स बेस्ड लिबरल ऑर्डर है, इससे थोड़ा सा हट के अपने इंटरेस्ट को परसू करेंगी, और उसमें यूके भी शामिल है। यूके भी अपने डाइवर्सिफाई कर रहा है, यूरोपीय यूनियन भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। जब इतनी बड़ी ताकतें, जब इतने बड़े इदारे, यूरोपीय यूनियन जैसे इदारे, अगर वो अपनी अप्रोच को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो करना ही चाहिए। और फिर BRI जैसा प्रोजेक्ट मौजूद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को along with चाइना बैठना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, इन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलना चाहिए, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में कमोबेश यही हो रहा होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सईद, और ये क्वेश्चन मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि हम हमेशा एकेडेमिया में प्रिस्क्रिप्शन की भी बात करते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करेंगे पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को कि वो क्या ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करें कि जिसमें बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हों और किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत के बगैर या उनकी मुदाखलत के साथ-साथ भी इन ताल्लुकात में कोई ऊंच-नीच पैदा ना हो। और साथ में चूँकि जब हम कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, तो फिर रीजन के अंदर जितने भी ममालिक हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन उसकी शुरुआत इनफैक्ट श्रीलंका से हमारे बेहतर हैं, बांग्लादेश के साथ शुरू हो गए हैं। तो क्या ऐसे पॉलिसी ऑप्शंस का, इंस्ट्रूमेंट्स का, स्ट्रैटेजी का आप ज़िक्र करेंगे जिससे हमारी पॉलिसी के अंदर एक कंसिस्टेंसी आएगी विज़ा-वी बांग्लादेश? बहुत खूबसूरत सवाल, और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स पे तो बात होती रहती है कि, लेकिन पॉलिसी मेयर्स क्या है, सोल्यूशन क्या है? जनाब, सोल्यूशन वही है जो इससे पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटल लेवल पे भी, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस बढ़ाने होंगे। कैसे बढ़ाने होंगे? हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना होगा। हमारा ट्रेड अभी भी उसका हुजम बहुत कम है। दोनों कंट्रीज को मुख्तलिफ सेक्टर्स को देखना होगा कि हम कोऑपरेट कहां-कहां पे कर सकते हैं। और यकीन कीजिए, आईटी का सेक्टर अगर हम सिर्फ लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ जाना होगा, ट्रेड कोऑपरेशन की तरफ जाना होगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ जाना होगा। और जब मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ, तो मुझे इस तरह लगता है कि जो, अगर हम बांग्लादेश के जो विजन को देखें, 2030 के विजन को देखें, जिसमें उन्होंने फोर्सेस गोल्ड 2030 जिसको वो बोलते हैं, अगर उसको देखें, तो उनको फोर्स मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। पाकिस्तान का जो मिलिट्री सेक्टर है, वो सक्सेसफुली अपनी इंडिजनाइजेशन को कंप्लीट कर रहा है। पाकिस्तान चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, या उसके अलावा बाकी कन्वेंशनल वेपनरी हो, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि वेपन से रिलेटेड है, इट इज फ्लरिशिंग। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को बांग्लादेश को असिस्ट करना चाहिए इन देयर फोर्स मॉडर्नाइजेशन, एंड टुगेदर विद दैट हमें चाइना के साथ, जो मैंने पहले कहा, चाइना को हमें साथ मिलाना होगा, बल्कि चाइना की भी कंपल्शन है पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ मिलाने में। अब मैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज का, डॉक्टर साहब, हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडिया, मुझे लगता है कि गैर जरूरी तौर पे कॉशियस हो रहा है, एम्बिशियस हो रहा है, और वो एक कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कोऑपरेशन। और उनकी, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, अगर आप उनकी उनकी स्टेटमेंट्स को देखें, उनके पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स को देखें, तो आपको नजर आ सकता है कि वो कितने एक एम्बिशियस हैं। तो हमें इंडिया को भी ऑन बोर्ड लेना होगा। अब ये कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी एक जादू है। डिप्लोमेसी का टूल यूज करना होगा, सार्क की ऑर्गेनाइजेशन को फॉल करना होगा। देखिए, जो सार्क की ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने आप में एक बहुत होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। और सार्क को जब हम फॉल करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, तो खित्ते की खित्ते के जो लोग हैं, इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। ये भूख, अफलास, नंग, ये सेहत के मसाइल, ये एजुकेशन, ये एम्प्लॉयमेंट, ये सब खत्म हो जाएगी। और ये जो रीजन है, ये खित्ता जो है, ये डिजर्व करता है, इसके लोग डिजर्व करते हैं कि लोग अमन से रहें, लोग प्यार से रहें, और पीसफुली अपनी जिंदगी जिएं बाय इकोनॉमिक, वो जो ना, जितनी भी बाउंटीज हैं,
ब्लेसिंग्स हैं उनको हासिल करके। सो बायलैटरल लेवल, मल्टीलैटरल लेवल्स पे हमें एफर्ट्स करनी होंगी बेस्ड ऑन pragmatism, बेस्ड ऑन कलेक्टिव बेनिफिट। और यकीनन सार्क एक बेहतरीन एक आप फ्रेमवर्क है आपके सामने जिसको लेकर अगर आगे हम चलें तो साउथ एशिया की तकदीर बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच सईदुज़्ज़मान। नाज़रीन, आपने सईदुज़्ज़मान की गुफ्तगू सुनी। मुझे लगता है कि जो मीडिया है उसके अंदर कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए और एकेडेमिया के अंदर एक्सचेंजेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ आएँ, नए बयानिए की ज़रूरत है और नए बयानियों को नए अंदाज से डिसेमिनेट करने की ज़रूरत है। उसी सूरत में होगा जब एकेडेमिया और साथ-साथ मीडिया पर्सन्स के आपस में ताल्लुकात बढ़ेंगे, एक्सचेंजेस होंगी, तब ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हमें डायरेक्ट खबरें आनी चाहिए बांग्लादेश से और बांग्लादेश को डायरेक्ट खबरें जानी चाहिए पाकिस्तान से। ये ना हो कि बांग्लादेश को खबरें हमारी भारत से आती हुई हों और भारत के ड्रामे तो वहाँ चलते थे, पाकिस्तान के ड्रामे नहीं चलते थे। अब शायद पाकिस्तान के ड्रामे चलेंगे, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी ड्रामों को इंटरनेट के ज़रिए से देखते थे। वो बड़ी उन्होंने फ़ेमस वहाँ पे रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे और सईदुज़्ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।